ओके मैम। हाँ, तो हम देखेंगे। मैं आपको व्हाट्सएप पर ही कुछ नोट सेंड कर दूंगी, व्हाट्सएप पे बुक बता दूंगी, जिससे आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, ठीक है? यस मैम, मैं स्टडी करती हूँ। वेरी गुड बेटा, एक बार मैं मैसेज करती हूँ ताकि सभी बच्चे ज्वाइन कर ले। बाकी सभी बच्चे ठीक हैं? ध्यानेश्वर, मोक्षदा, कैसे हो आप सब? हाँ जी मैम। वेरी गुड। ओके बेटा, जस्ट गिव मी अ मिनट एंड देन आई विल शो माय स्क्रीन। ठीक है, एक बार ग्रुप में मैसेज करती हूँ ताकि सब बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर ले। मैम आपका स्पीकर, आपका आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओ अच्छा, मेरा माइक ऑफ था, सो सॉरी। अभी मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस यस मैम। मैम। ओके ओके, सॉरी बेटा। वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें हम लोगों ने बात करी थी कि हाउ जो एटम होता है, that was the smallest unit, that every matter is made up of atom. And John Dalton was the first scientist, and he believed that there is nothing inside the atom. Atom is the smallest unit. But after that, we come across different experiments by which we came to know that atom also has electrons, protons, and neutrons. Do you all remember this? यस मैम। Then we discussed that every scientist was now curious. They had this question that if there are electrons, protons, and neutrons, then how does the atom look? What does an atom look like? So John Dalton was the first scientist to talk about this. He talked about the atom, but he did not talk about the electrons, protons, and neutrons.
but there was one scientist that different scientists came across that electrons, protons, and neutrons are also there. So Thomson model, the very first model was Thomson model. Remember, Yes, ma'am. that was the watermelon model. Thomson, that and atoms look like this, in which these are the seeds. These seeds are like the electrons, and this entirely positive charge is protons. Remember? Yes, ma'am. But then Thomson could not explain multiple things. Then comes the Rutherford. That was the student of Thomson. Rutherford did an experiment. So he find out that no, atom does not look like this. The positive charge in the entire mass of the atom is here in the center. And all the electrons are moving around the atom. Remember? But then Rutherford could not also explain that if electrons are moving and moving, when they are moving, they will lose energy. And if they will lose energy, they will ultimately fall into the nucleus. But they are not falling into the nucleus. So even the Rutherford model was proved wrong. So after Rutherford model, next model come Bohr model. Which model come? Bohr model. Bohr's model. But before giving the model, Bohr starts studying. बॉस ने पहले बहुत सारी पढ़ाई करी. किस बारे में पढ़ाई करी? साइंस में अलग अलग डिस्कवरीज हो रही थी, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स आ रही थी. सो बॉर फर्स्ट स्टडीड अबाउट दोज एक्सपेरिमेंट्स. बेटा उसमें जो पहला था, दैट वाज द डुअल नेचर ऑफ लाइट. याद है आप लोगों को? डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. एंड Yes, दूसरा ma'am. इज लाइन, Remember. दूसरा इज लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम. डुअल नेचर में हम लोगों ने बात करी थी दैट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, दे हैव टू टाइप्स ऑफ नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर. इसमें से बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में वेव नेचर की देखो बात कर ली थी. ये साथ मैं आपको दिखा देती हूँ. रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज टू नेचर्स, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. तो हम लोगों ने वेव नेचर की बात करी थी. याद आ रहा है ये सब? Yes, ma'am. I remember. यस. बाकी सब भी अच्छी बोले बेटा. वेव नेचर में देखो हम लोगों ने बात करी थी जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जब वो प्रोपोगेट करती है तो उसके परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है. ठीक है, चलो अब क्विकली बताएंगे. इफ दिस इज अ वेव, दिस, व्हाट इज दिस अपवर्ड वेव कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड अ crest. And what is this called? नोट्स में देखो, आप लोगों के नोट्स में लिखा होगा बच्चे. Ma'am, This downward is wave. अपवर्ड इज क्रेस्ट, डाउनवर्ड इज ट्रफ. अपवर्ड कोई भी वेव होती है उसे क्या बोलते हैं? क्रेस्ट. और जो डाउनवर्ड जा रही होती है उसे क्या बोलते हैं? ट्रफ. क्लियर है? Yes, ma'am. अच्छा, अब एक बात बताओ, व्हाट इज दिस कॉल्ड? डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स. इसे हम क्या बोलते हैं? Wavelength. वेवलेंथ. वेरी गुड ऋतु. दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ, रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा. इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं. चलो ओके. ये बताओ व्हाट इज दिस कॉल्ड? हाइट ऑफ द वेव. इसे क्या बोलते हैं हाइट ऑफ द वेव को? Amplitude. एक्सीलेंट बेटा. बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे. ध्यानेश्वर, मोक्षदा, राज. एम्पलीट्यूड. हाइट ऑफ द वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. अच्छा, फ्रीक्वेंसी याद है? Yes, ma'am. Someone else will answer now this time, not Ritu. Who will answer this time? What is frequency? नोट्स में लिखा हुआ है बच्चे, जल्दी से देख के बता दो. What is frequency? सेकंड में जितने नंबर पास होते हैं उसे रितु आपको फ्रीक्वेंसी नहीं, किसी और को आंसर करना है. वेट.
यस निशा, मैम फ्रीक्वेंसी बोलो बच्चे। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग और पर सेकेंड थ्रू अ पॉइंट, कि अगर मैंने एक छोटा सा पॉइंट बना दिया तो इस पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास करेंगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। याद है? और हम लोगों ने एक फॉर्मूला करा था, दैट स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू में न्यू, और वी कैन से लैम्डा इज इक्वल्स टू सी बाय न्यू। यस मंथन, यू हैव रेज्ड योर हैंड, टेल मी बच्चे। मंथन आपने हैंड रेज करा है, आपको कोई डाउट है बच्चे? देखो बेटा, मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे सिर्फ क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद वो नोट्स कॉपी रख देते हैं, जब नेक्स्ट टाइम क्लास होती है तब उठाते हैं। दिस इज नॉट हाउ यू शुड स्टडी इन क्लास 11। यू ऑलवेज हैव टू रिवाइज बिफोर द क्लास। आपको पता है कि आज केमिस्ट्री की क्लास है, मान लो 7:30 पे, तो आपको क्या करना चाहिए, एटलीस्ट आप 6:30 पे या 7 o'clock आ जाओ। आपकी एक क्लास 7:30 होती है, एक क्लास 8:30 होती है। 6:30 to 7 आप एक क्लास के लिए पढ़ो, और उसके बाद 7 to 7:30 आप एक क्लास के लिए पढ़ो। या तो आप इस तरीके से पढ़ो, या फिर आप हर दिन अपना थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो कि नेक्स्ट क्लास से पहले आप पुरानी क्लास का रिवाइज करके आओ। बिना रिवाइज करे बच्चा नहीं समझ में आता ना, आप भूल जाते हो। अभी देखो, हमारी वीक में सिर्फ 2 क्लास होती है, एक क्लास हमारी ट्यूसडे है, उसके बाद हमारी क्लास फ्राइडे होती है। तो अगर आप बीच में नहीं पढ़ोगे 2 दिन, तो देन तो आप भूल जाओगे ना। समझ में आ रही है मेरी बात? मैम वो मैंने पीडब्ल्यू की भी क्लासेस लगाई है ना, तो वो डबल प्रेशर आ रहा है। अच्छा भाग्यश्री, बात बताओ, जो पीडब्ल्यू की क्लासेस लगाई हैं आपने बच्चे, उनकी टाइमिंग्स क्या है आपकी? मैम फर्स्ट क्लास होती है 4 to 5:30, फिर सेकेंड होती है 5:45 to 7:50, और थर्ड होती है 7:30 to 9। और ये आपकी किस किस डेज पर होती हैं? मैम पूरे वीक भर होती है। अच्छा चलो बेटा, फिर तो कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। ऐसे तो इतना सारा करके नहीं चलेगा। देखो, अगर आप पीडब्ल्यू से भी क्लास ले रहे हो, आप यहाँ से भी क्लास ले रहे हो, लेकिन अगर आपको सेल्फ स्टडी का ही टाइम नहीं मिलेगा तो बच्चा नहीं फायदा होगा। कोई भी 11th में हम कहीं से भी पढ़े, जब तक हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे ना, खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक हमें नहीं बेनिफिट होगा। या बाकी सभी बच्चों को समझ में भी आ रही है ये वाली बात, दैट यू हैव टू रिवाइज द नोट्स एंड प्रैक्टिस लॉट मेनी क्वेश्चंस। ओके यस मैम। फिर मैं ना कभी कभी पीडब्ल्यू की रिकॉर्डेड सुन लेती हूँ, और कभी कभी आपकी रिकॉर्डेड सुन लेती हूँ। ओके भाग्यश्री। बेटा बाकी सभी बच्चे, मोक्षदा, ध्यानेश्वर, बेटा आप लोग अब प्लीज प्रैक्टिस करने के ऊपर ध्यान दो। ओके राज, संजना, उन्नति, यस मैम। यस, जयश्री, गिरीश। चलो बेटा, अब बच्चा ये देखो, हम लोगों ने वेव नेचर डिस्कस तो कर लिया था। अब बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? यस मैम, इज विजिबल। हाँ, अब देखो बच्चा, होता क्या है, there are the different types of waves and has a different every wave has a different wavelength, different frequency, and bacha, as the wavelength and frequency changes, the nature of the wave also changes। ध्यान से समझेंगे। ये देखो बच्चे, 2 तरह की वेव है। अगर वेवलेंथ ज्यादा हो तो बेटा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। देखा जाए तो 1 सेकेंड में सिर्फ 1.5 ही वेव निकल पाएगी। वहीं पर अगर बेटा वेवलेंथ कम हो जाए तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। देखो, अगर मैं वेवलेंथ पतली कर दूं तो नंबर ऑफ वेव्स अब इंक्रीज हो गई ना। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम, गॉट इट मैम। को अब बच्चा, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी टाइप की वेव्स होती हैं। कुछ वेव्स ऐसी हैं जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है,
कुछ वेव्स ऐसी हैं जिनकी वेवलेंथ कम है, मतलब जिनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, आप लोगों को रियलाइज भी नहीं होता, बट आपने बहुत सारी वेव्स का नाम सुना होगा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने रेडियो सुना है कभी? यस मैम। हम लोग कभी कभी रेडियो सुनते हैं ना, कभी सुना है यस एफएम रेडियो? कभी कभी कार्स में चल रहा होता है, कैब्स में, या एक रेडियो का ऐसा डिवाइस भी आती है उससे भी रेडियो चलता है। देखा है कभी रेडियो? यस मैम, मैंने देखा है। ओके, बाकी सबने सुना है? यस मैम, देखा भी और हाँ, सुना भी है। तो एक बात सोचो बेटा कि वो जो रेडियो है उसकी आवाज हम तक कैसे पहुंच पा रही है? बाय सम स्पेसिफिक वेव्स वो हम तक पहुंच पा रही है। हम लोग ये जो कलर्स देख पाते हैं ना बेटा, कि हमें रेड कलर रेड ही क्यों दिखता है, ब्लू ही क्यों दिखता है, ग्रीन ही क्यों दिखता है, आपको पता है इन सब कलर्स की अपनी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। कि रेड कलर की एक वेवलेंथ है, ब्लू की अपनी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है, कि अगर एक वेवलेंथ होगी जिसकी ये वेवलेंथ होगी तो वो हमें रेड दिखेगा, अगर एक वेव जिसकी इतनी वेवलेंथ होगी तो वो हमें ब्लू दिखेगा। और क्या सारी रेज हमें दिख पाती हैं? सारी रेज तो हमें दिख भी नहीं पाती। क्या आप लोगों ने कभी अल्ट्रा वायलेट रेज का नाम सुना है? यस मैम, सुना है। अच्छा संजना, आपने बताओ कहाँ सुना है अल्ट्रा वायलेट रेज? अभी आपने अपना माइक ऑन मैम, करा था। 10th के फिजिक्स में था ये। वेरी गुड सुषमा। ओके संजना, आप भी आंसर कर रहे थे, बोलो। आप लोगों ने ऐसा सुना है कि जो सन होता है, सन से बहुत सारी रेज आ रही होती हैं, तो सन से ओजोन की यहाँ पर एक लेयर होती है जो हमें सन की अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है। सुना है ऐसा आपने? यस मैम, सुना यस है। मैम। और हमारे स्कूल में ऐसा भी बताया गया था कि वो जो पोल्यूशन है उसकी वजह से ओजोन का स्तर कम होते जा रहा है। बिल्कुल, ओजोन में एक होल हो गया है, जिस होल से ये अल्ट्रा वायलेट रेज अब अर्थ तक आ रही है पॉल्यूशन की वजह से। तो बच्चा क्या होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब कि वो हमें पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम, जैसे बेटा रेनबो होता है ना, सब कलर्स होते हैं, ऐसे ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये आपको सभी तरह की रेज बता रहा है। देखो बेटा ये जो है ना इस साइड, दिस इज इट्स वेवलेंथ। नीचे वाला देखो, नीचे वाला लैम्डा है ना, लैम्डा इज द वेवलेंथ, और ये है फ्रीक्वेंसी। मैम, 16 सितंबर को ओजोन डे भी मनाया जाता है। गुड। अब बचा एक मिनट, आप लोग सभी लोग स्क्रीन पे देखेंगे कि आपको ये दिख रहा है कि ये न्यू से क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी, और ये लेमडा से क्या लिखा हुआ है, वेवलेंथ। इज दिस क्लियर? यस मैम। अब आप ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 10⁻⁻0 यानी कि 1, फिर 100, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, 10 करोड़, ऐसे कर कर करते 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 इस साइड जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और देखो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज करती जा रही है, वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है। क्लियर हुआ? ये देखो इस तरफ आकर फ्रीक्वेंसी एकदम हाई हो गई और वेवलेंथ एकदम छोटी हो गई। अब होता क्या है बच्चा, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेज होती है ना, वो हमारे लिए उतनी ही हार्मफुल रेज होती है। कैसी होती है? उतनी ही ज्यादा हार्मफुल रेज। अब देखो ये वाली जो रेज है, जिनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है, 10⁻24 वाली रेज जो है, 10⁻20 से लेकर 10⁻24 जिनकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, इन रेज का नाम है गामा रेज। क्या नाम है इनका? गामा। ये जो सिंबल बना हुआ है ना बेटा, ये सिंबल है गामा रेज का। आपको पता है, आपने कभी न्यूक्लियर बॉम्ब सुने हैं? न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब हो जाएगा, नहीं। सुना है यस मैम, गायत्री? मैंने सुना है। यस मैम। यस बेटा, ये जो अब वो रेज कैसी होती है, बहुत हार्मफुल रेज होती है ना। जब न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना बच्चे, तो उसमें से गामा रेज ही रिलीज होती है, और आप देखो कि ये कितनी हार्मफुल रेज है ना। उसके बाद बेटा गामा रेज के बाद थोड़ा कम पर आते हैं एक्सरे। आप लोगों ने एक्सरे सुना है कभी? कभी हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी का यस फ्रैक्चर मैम। हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो एक्सरे कराते हैं ना। यस मैम। अच्छा, अच्छा जिसका एक्सरे होता है, उसके अलावा क्या जो उसके साथ दूसरा पर्सन होता है, फैमिली मेंबर, उसको अंदर जाने देते हैं एक्सरे करते हुए? नो मैम। नहीं। नहीं मैम। क्यों? क्योंकि बेटा एक्सरेज भी हार्मफुल होती हैं, इतनी भी हार्मफुल नहीं होती गामा रेज जितनी, पर थोड़ी एक्सरेज भी हार्मफुल होती हैं। वो तो हमें उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी हेल्थ के लिए, तो हम जल्दी से 1 सेकेंड 2 सेकेंड्स के लिए एक्सरेज अपनी बॉडी से पास करा देते हैं। और सोचो ना कितनी हार्मफुल रेज है कि हमारी पूरी स्किन को पार कर पा रही है, सिर्फ बोन को ही तो नहीं पार कर पाती, तभी तो बोन स्ट्रक्चर बताती है।
तो इसीलिए बेटा किसी और अटेंडेंट को उसमें नहीं जाने दिया जाता, सो दैट कि उनके ऊपर एक्सरेज का असर ना आए। इवन आप कभी भी ऑब्जर्व करना कि अगर आप कभी हॉस्पिटल में जाते हो किसी चीज के लिए और आप देखोगे ना, जो एक्सरे वाले डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने हमेशा एक जैकेट पहनी हुई होती है, ताकि वो तो सारा दिन वहीं पे रहते हैं, ताकि उनके ऊपर एक्सरेज का इफेक्ट ना। क्लियर हुआ? यस मैम। एक्सरेज के बाद बेटा नेक्स्ट आती है अल्ट्रा वायलेट रेज। ये देखो, ये अल्ट्रा वायलेट रेज भी बहुत ही ज्यादा हार्मफुल रेज होती हैं। ये हमारी सन से निकलती है, पर ये पता है हम कब यूज करते हैं? ये भी अल्ट्रा वायलेट रेज भी हम लोग हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं। किस चीज के लिए यूज करते हैं बच्चे अल्ट्रा वायलेट रेज? जब भी कोई सर्जरी होती है, कोई ऑपरेशन होता है, तो उसमें जो भी हमें टूल्स यूज करने होते हैं, सीजर्स, कटर्स, जो भी हमें टूल्स यूज करने होते हैं, उन टूल्स पे कोई भी बैक्टीरियाज ना हो, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस ना हो, तो उनको किस में रखा जाता है? अल्ट्रा वायलेट रेज में। ये अल्ट्रा वायलेट रेज इतनी हार्मफुल होती हैं कि इस अल्ट्रा वायलेट लाइट के अंदर वो सारे बैक्टीरियाज वगैरह किल हो जाते हैं। क्लियर हुआ? पर एक बात बताओ, क्या इनमें से कोई भी रे हमें विजिबल होती है? गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, क्या ये रेज हमें विजिबल होती है? नो मैम। नहीं दिखती। पर बेटा यूवी रेज के बाद एक हमारा छोटा सा, बहुत ही छोटा सा रीजन आता है विजिबल रेंज का। किसका रीजन आता है? विजिबल विजिबल रेंज। विजिबल रेंज, यहाँ पर जो मेरी बेटा लेंथ होती है ना, ये वाली फ्रीक्वेंसी की 10 रेज टू द पावर 14 से लेकर 10 रेज टू द पावर 16 के बीच में, यानी कि 10 रेज टू द पावर 15 के अराउंड जिन वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है, सिर्फ वो वाले लाइट्स हमें दिख पाती है। और उन सब की भी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उनका कलर अलग अलग होता है। कोई हमें रेड दिखता है, कोई हमें ब्लू दिखता है। ब्लू की वेवलेंथ ज्यादा होती है, रेड की वेवलेंथ कम होती है। क्लियर हुआ? यस मैम। सभी को समझ में आ रहा है? यस मैम। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और बेटा विजिबल रेज के बाद फिर इधर की तरफ आती है आई आर। आई आर जो होती है वो इंफ्रारेड रेज होती है। ये भी हमें दिखती नहीं है, लेकिन ये क्या, ये हार्मफुल होंगी या नॉन हार्मफुल होंगी? मैम रिपीट। ये इंफ्रारेड रेज आपको क्या लगता है, हार्मफुल होंगी या नहीं होंगी? हार्मफुल होगी मैम। मैम थोड़ी सी हार्मफुल नहीं। होगी और बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यस मैम। हाँ, जैसे जैसे हम इस तरफ आते जा रहे हैं, रेज हमारे लिए कम कम हार्मफुल होती जा रही है। विजिबल रीजन की ज्यादातर जो इधर वाली रेज होती है ना बेटा, वो हमारे लिए कम हार्मफुल होती है। ऐसे समझो, आई आर, आई आर रेज का नाम होता है इंफ्रारेड रेज। क्या नाम होता है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। मैम हाँ बेटा, ये जो ये ऊपर हीट रेज पॉजिटिव नंबर से और नीचे नेगेटिव नंबर से, ये क्या है? बेटा ऊपर वाला जो नंबर है ये फ्रिक्वेंसी है, और जो नीचे वाला नंबर है वो वेवलेंथ है। ठीक है? यस मैम। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, वेवलेंथ कम होती जा रही है। इधर की तरफ देखो, फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है? यस मैम, गॉट इट। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम धूप में खड़े होते हैं तो सन से हमें रोशनी तो आती है, साथ में गर्मी भी आती है ना? यस मैम। में यस खड़े मैम। होते हैं तो गर्मी लगती है ना? क्यों लगती है बेटा? क्योंकि सन जो रेडिएशन देता है ना, तो सन से सब तरह की रेडिएशन आती हैं। सन से गामा रेज भी निकल रही होती है, लेकिन गामा रेज बिल्कुल सन के पास निकल रही होती है, अर्थ के इतना ज्यादा पास नहीं आ रही होती है, तो इसीलिए गामा रेज नहीं आती। पर सन निकाल रहा होता है एक्स रेज भी, अल्ट्रा वायलेट रेज भी। अल्ट्रा वायलेट रेज से तो हमें ओजोन लेयर बचा लेता है। विजिबल रेंज भी आ रही होती है, तो इसलिए हमें रेनबो भी दिखता है, सन में कलर्स भी दिखते हैं। उसके बाद बेटा सन से इंफ्रारेड रेज भी आ रही होती है, जो कि हमारी क्या होती है? हीट वेव्स। कभी भी इंफ्रारेड आएगा तो वो क्या, किसको रिप्रेजेंट करेगा? हीट को। तो अगर सन धूप में खड़े होते हैं तो हमें कुछ हार्म थोड़ी होता है इंफ्रारेड रेज से, तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती। क्लियर हुआ? यस मैम, गॉट इट मैम। आप लोगों ने देखा होगा जब कभी कोविड आया था बेटा, पीछे पेंडेमिक आया था, तो थर्मामीटर देखे थे? अगर हम नॉर्मली, थर्मामीटर कैसा होता है? मुंह में लगाने वाला थर्मामीटर होता है, लेकिन मुंह में लगाने से तो वो वायरस आ जाता। तो एक दूसरा थर्मामीटर आ रहा था जिसे दूर से माथे के ऊपर वो कर रहे थे,
फॉरहेड के ऊपर दूर से ऐसे क्लिक करते थे तो वो टेम्परेचर बताता था। देखा है आप लोगों ने वो थर्मामीटर? यस मैम। देखो मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ, आप लोगों ने देखा होगा ये वाला थर्मामीटर। अच्छा मेरी स्क्रीन शेयर, एक सेकेंड। एक मैम सेकेंड। आप कौन सा थर्मामीटर कह रहे हैं? क्या बेटा? आप कौन सा थर्मामीटर कह रहे हैं? दिखा रही हूँ एक सेकेंड। एक सेकेंड, मैं ना टैब ही शेयर करती हूँ। ये देखो बेटा, ये वाला थर्मामीटर देखा है आपने? कोविड में इस वाले ऐसे थर्मामीटर से नाप रहे थे ना टेम्परेचर दूर से। हम कभी मेट्रो पे कहीं और जाते थे बस में, देखा है आप लोगों ने? कोविड में यूज होता था ये वाला थर्मामीटर। यस मैम। किस किसने देखा है? वेरी गुड, अभिषेक ने देखा है। शांति मैम ने भी। कोविड के टाइम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखा है। हाँ वेरी गुड। तो बेटा ये वाला जो थर्मामीटर होता है ना, इसको भी इंफ्रारेड थर्मामीटर कहते हैं। ये थर्मामीटर भी क्या कर रहा था, जो जब अगर हमें बुखार है और हमारा बॉडी गर्म हो रही है, तो गर्म हो रही है तो क्या करेगी हमारी बॉडी? इंफ्रारेड रेज रिलीज करती है। और वही जो इंफ्रारेड रेज होती है ना, ये थर्मामीटर उसको पकड़ रहा था कि हमारी बॉडी से कितना इंफ्रारेड वेव्स निकल रही है, और उससे हमारा टेम्परेचर बता रहा है। अभी समझ में आया ये थर्मामीटर कैसे काम कर रहा था? यस मैम, गॉट इट। जब हमारी बॉडी में से भी इंफ्रारेड रेज निकलती हैं, क्योंकि इंफ्रारेड रेज क्या होती हैं? हीट। तो अगर हमें बुखार होता है तो हमारी बॉडी भी इंफ्रारेड रेज निकालने लग जाती है। वेरी गुड, ओके बच्चे। तो बेटा ये इंफ्रारेड रेज होती हैं। फिर इंफ्रारेड रेज के बाद हमारे पास उससे थोड़ा सा कम फ्रिक्वेंसी वाला होता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में तो हम हमारा खाना भी गर्म कर लेते हैं। माइक्रोवेव एक इस तरह की डिवाइस होती है बेटा जिसमें खाना गर्म हो जाता है, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता, तभी हम उसमें खाना गर्म कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद रेडियो वेव्स है, FM AM वेव्स, जो हम रेडियो सुनते हैं। वो हम रेडियो सुनकर हमें कोई बीमारी थोड़ी होती है। अच्छा आपने रेडियो में कभी सुना है रेडियो का चैनल होता है 92.7, 104.8, ऐसे रेडियो के वो होते हैं ना, चैनल्स के नंबर होते हैं। सुना है कभी ऐसे नंबर्स होते हैं? नो मैम, ऑलमोस्ट रेडियो रेडियो ऐसा ही बोलते हैं। बेटा हर एक रेडियो पे बहुत सारे चैनल होते हैं। रेडियो पे ऐसा नहीं होता सिर्फ एक ही चैनल होता है। जैसे टीवी में चैनल होते हैं ना, ऐसे रेडियो में भी अलग अलग चैनल होते हैं, पता है? और वो चैनल कैसे होते हैं? वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर होते हैं। हर एक फ्रिक्वेंसी पर अपना एक चैनल चलता है, तो वो रेडियो वेव्स होती है। और उसके बाद बेटा ये लॉन्ग रेडियो वेव्स। ये लॉन्ग रेडियो वेव्स क्या है? मेरी आवाज, आई एम सिटिंग इन दिल्ली, बट मेरी आवाज अभी आप लोग महाराष्ट्र में हो, वहां तक भी जा पा रही है। ठीक है, हम फोन पे बात करते हैं तो भी हमारी आवाज ट्रांसमिट हो पाती है। यहाँ टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारी आवाज ट्रांसमिट हो रही है, तो उसमें किसका रोल है? ये लॉन्ग रेडियो वेव्स का रोल है। इसका रोल है ये लॉन्ग रेडियो वेव्स का। लॉन्ग रेडियो वेव्स। हम्म, ये लॉन्ग रेडियो वेव्स हमारे मोबाइल टावर्स ये सब बनाने में हेल्प करती है। ये सब क्लियर हुआ? समझ में आ गया बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? आगे चलें। ओके, तो बच्चा हमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ में आया। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वेव वाला जो पार्ट है, इस वेव वाले पार्ट ने हमें बहुत सारी चीजें तो एक्सप्लेन करी, बट ये हमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं भी कर पाया। क्या क्या चीजें एक्सप्लेन कर दी? देखो डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। जब वो एक स्मॉल पॉइंट से जाता है तो क्योंकि लाइट वेव जैसी होती है वो डिफ्रैक्शन शो करती है, समझ में आ रहा है? इंटरफेरेंस, दोनों लाइट्स, अगर दो लाइट करो तो दो आपस में ओवरलैप कर जाता है। ये वाली चीज भी वेव नेचर ने एक्सप्लेन कर दिया, बट अभी भी बहुत सारी चीज वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रम, ये सारी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो हमें पता चला कि हमें रेडिएशन के दूसरे नेचर पे जाना पड़ेगा, विच इज द पार्टिकल नेचर। क्लियर हुआ?
अभी समझ में आएगा। आपने कभी ऑब्जर्व करा है बच्चा कि अगर गर्मी में ब्लैक शर्ट पहन लो और व्हाइट शर्ट पहनो तो क्या ज्यादा कंफर्टेबल होता है, ब्लैक या व्हाइट? शर्ट। बताओ। अच्छा, व्हाइट शर्ट। ब्लैक शर्ट में गर्मी लगती है ना। अच्छा, अब हमें ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ब्लैक शर्ट में गर्मी लग रही है और व्हाइट शर्ट में नहीं लग रही। तो ये वाली बात ना बेटा वो वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। हाँ बेटा, कोई ब्लैक बोल रहा है। कलर absorb the heat. Black color absorbs the heat. Very good. But why does only black color absorbs the heat? Why white color does not absorb the heat? ये वाली बातें हमें किसने एक्सप्लेन करी? पार्टिकल नेचर। देखो बेटा, ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी एक इस तरह की बॉडी होती है जो सभी जितनी भी अभी तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ा है ना कि अलग अलग वेव्स होती है, तो एक ऐसी बॉडी जो सभी तरह की वेव्स निकाल पाए, एमिट कर पाए और सभी तरह की वेव्स एब्जॉर्ब कर पाए, उसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। एक्चुअल में तो बेटा कोई ब्लैक बॉडी नहीं है। सन एक ब्लैक बॉडी है, सन कर सकता है, सब तरह की रेज एमिट कर सकता है, सब तरह की रेज एब्जॉर्ब कर सकता है। बेटा उसके बाद अब ये देखो, हमारे पास एक साइंटिस्ट आए प्लैंक। कौन से साइंटिस्ट आए? प्लैंक। प्लैंक ने हमें क्या दिया? पार्टिकल नेचर। प्लैंक ने अब हमारे साथ किसकी बात करी? पार्टिकल नेचर की बात करी। बेटा हेडिंग डालेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ, प्लीज पुट द हेडिंग पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बच्चा आप लोगों को कभी ऑब्जर्व करो कि अगर हम एक आयरन की रॉड लूं, क्या लूं? एक आयरन की रॉड, और अगर हम इस आयरन की रॉड को हीट करते हैं तो आपने कभी देखा है कि उसके कलर कैसा चेंज होता है? आयरन रॉड का क्या होता है? आयरन रॉड का कलर चेंज होता है, वो देखा है कभी आप लोगों ने? देखो मैं Yes, आप लोगों ma'am. को अभी एक वीडियो दिखाती हूँ, फिर हम उस वीडियो से देखते हैं, ठीक है? क्या होता है बताओ? रेड। रेड। हमेशा रेड ही रहता है क्या? नहीं मैम। अच्छा एक मिनट ना बच्चे। ओके, अच्छा मेरा स्क्रीन अभी शेयर नहीं है ना, वो वाला जो मैं दिखाना चाह रही हूँ। देखो अभी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? बेटा ध्यान से देखना, ठीक है? So I'm guessing ये स्टील है, that this hall of इस mirrors स्टील का भी thing कलर is the चेंज solar होगा। देखो furnace. Yes, this is where we can achieve 2,400 centigrade. The solar furnace simply uses mirrors to concentrate sunlight and reach those incredibly high temperatures. Now, to illustrate how useful 2,400 degrees is, and to bring this back down to हमें ये earth, जो I'm बोल going रहे हैं to उसको use सुनने it की to जरूरत cook नहीं है, this हमें सिर्फ traditional ऑब्जर्व करना है। American lunchtime hot dog snack. Oh yeah, that's got it. Good God, देखो पहले व्हाइट कलर है, अभी धीरे धीरे देखना है इसका that's कलर कैसे frazzled. चेंज It's not medium rare, that one, I'm afraid.
It's even worse than the ones that were on sale in the Odeon in Rotherham in 1974. It's quite hot as well. Yeah. Can you de-dog my stick for me? Have you got I another can't. one? I don't usually get asked to do that very often. क्या इसमें पता चल रहा है कैसे What कलर else can we चेंज हो do रहे with हैं? this? We can melt some steel to illustrate the real high temperature Really? capabilities. Yeah, sure. Let's do it. All right. Burning a hot dog is child's play. For steel, Rich and Nate have to fine-tune. You must be the new See here, G correspond and lower अच्छा wavelengths इसमें are लोगों ने even देखा widely absorbing heat हम energy. इस आयरन रॉड को हीट कर रहे हैं बेटा ध्यान से देखना Later, क्या हो रहा है आयरन रॉड this को heat heat energy absorbed by the high iron rod will be emitted in the form of light of different colors. First, it turns as red. See here. So this red color अभी कौन सा कलर हुआ रेड कलर हुआ ठीक है lower अभी इसको energy, थोड़ी देर और lower हीट होने दो energy फिर अभी आप देखना and क्या हुआ higher wavelength. Okay, so if it is heated continuously, its temperature rises gradually, then it will emit different colors. देखो हल्का हल्का ऑरेंजिश So दिख रहा है अभी later it turns as orange. That means येलोइश हो it गया is emitting an orange color Okay. light. Okay. Next, अभी और देखो It इसको हीट turns होने देते हैं देखो yellow. येलो हो गया That is, it is emitting yellow color light. Next, blue color. और अभी ब्लू हो गया And if the temperature is high enough, it emits even white color देखो also और अब like लास्ट this. में अगर मैं इसको हीट करती जाऊं तो ये क्या कलर White देगा color व्हाइट कलर दे देगा corresponding to ये क्लियर हुआ आप लोगों को कि आयरन रॉड किस तरीके से कलर्स दे रहा है बच्चे देखा आप लोगों ने तो अब बच्चा यही वाली बात हम लोगों को समझ नहीं आई कि जो आयरन का कलर है वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज नहीं हुआ आयरन का कलर धीरे धीरे करके चेंज हुआ पहले बहुत देर तक रेड रहा फिर उसके बाद ऑरेंज हो गया फिर येलो हो गया देन ब्लू हो गया देन व्हाइट हो गया तो ऐसा क्यों हुआ तो उसके लिए बेटा प्लैंक ने एक बहुत अच्छी बात बताई प्लैंक ने क्या बताया हमें प्लैंक ने बोला कि जब भी कभी एक ब्लैक बॉडी होती है ना या कोई भी जो हीट है जैसे वो वहां पर वो थर्मल रेज है वो जो हीट दे रहे हैं वो हीट कभी भी कॉन्टिन्यूअस मैनर में नहीं देते जो हीट होती है वो किस में आती है छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी में आती है इसमें आती है छोटे छोटे पैकेट्स में आती है मतलब कि मानो कि ये एक वो है सोर्स है और इस सोर्स तक लाइट आनी है तो लाइट ऐसे कॉन्टिन्यू में नहीं आ रही लाइट कैसे आ रही है छोटे छोटे पैकेट्स में आ रही है क्लियर हुआ तो इसका मतलब कि अगर मान लो यहाँ पर एक आयरन रॉड है तो वो आयरन रॉड क्या करेगा जैसे चिप्स के पैकेट होते हैं ना तो ऐसे समझो कि ये एक चिप्स का पैकेट है जिसमें बहुत सारे चिप्स हैं तो पहले ये वाला पैकेट खोलेगा खाएगा फिर एक सेकंड पैकेट लेगा वो खोलेगा खाएगा देन थर्ड पैकेट लेगा खोलेगा खाएगा ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस चिप्स 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 आ रहे चिप्स डायरेक्टली नहीं आ रहे कैसे आ रहे हैं छोटे छोटे पैकेट्स में आ रहे हैं क्या ये बात क्लियर हुई यस मैम तो बेटा उन्होंने पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या नाम दिया ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को उन्होंने नाम दिया क्वांटम क्या नाम दिया क्वांटम इसीलिए हम इसे बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी प्लैंक्स ने हमें बताई ये बात कि whenever there is a wave so it's not the wave also consists some packets of particles there are some particles there are some quantums in which the energy is released क्या ये बात क्लियर हुई और उन्होंने बोला कि जो एक क्वांटम है मतलब मानो ये पहला वाला पार्टिकल है ये एक क्वांटम है तो जो एक क्वांटम की एनर्जी होगी बेटा दैट विल बी इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू h न्यू क्या ये बात क्लियर हुई उन्होंने बोला एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना जल्दी 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 पार्टिकल्स वेव खाएंगे तो उतनी ज्यादा एनर्जी होगी और जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो कांस्टेंट लगा दिया E इज इक्वल्स टू h न्यू बेटा यहाँ पे h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट h क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट
इसकी वैल्यू सेम रहती है 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 लिखी हुई भी होगी मैंने यहाँ पे, देखो 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 जूल पर सेकेंड। ई क्या है? एनर्जी, ई इज एनर्जी, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्या ये बात क्लियर हुई? अच्छे से देखो, क्लियर हो गया? तो वेव नेचर भी क्लियर होगी और पार्टिकल नेचर भी। वेव नेचर में हम लोग बात कर रहे थे कि एनर्जी डायरेक्टली आती है, इस तरीके से आती है, और हम लोगों ने पार्टिकल नेचर में बात करा कि नहीं, लाइट में सिर्फ ऐसे वेव नहीं होती, पार्टिकल्स भी होते हैं, इस तरीके से एनर्जी दार। और हर एक पैकेट की एनर्जी कितनी है? E इज इक्वल्स टू एच न्यू। डन? सबने लिख लिया इसमें? बताओ बेटा, लिख लिया है? चले आगे। यस मैम, हो गया। यस मैम। ओके। यस मैम, हो बॉर गया। ने दो चीजें मेनली पढ़ी थी। बॉर ने एक तो पढ़ा था डुअल नेचर, डुअल नेचर में वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, और थर्ड उन्होंने पढ़ा था लाइन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ा था? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये देखो, एनर्जी कितनी हो सकती है? 0। एक पार्टिकल जा रहा है तो एच न्यू, दो पार्टिकल जा रहे हैं तो 2 एच न्यू, 3 पैकेट्स गए तो 3 एच न्यू। तो ऐसे जितने पैकेट्स जाएंगे उतनी एनर्जी हो जाएगी टोटल। ये तो समझ में आया ना बच्चे? तो इस तरीके से पार्टिकल्स की एनर्जी होती है। हेडिंग डालेंगे लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले तो बेटा स्पेक्ट्रा ही समझते हैं कि स्पेक्ट्रा क्या होता है या स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखो बच्चा, मानो ये एक एटम है, ठीक है? ये एक एटम का न्यूक्लियस है, और ये एटम में अलग अलग शेल्स है। ओ, ठीक है? अब बच्चा मानो, लेट्स assume that there is a electron in this particular shell। यहाँ पे क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन है। अगर बच्चा मैं इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूं, किसी भी फॉर्म में दे दूं, हीट की फॉर्म में दे दूं, किसी भी फॉर्म में अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चे? एनर्जी लेकर हायर एनर्जी लेवल पे क्या कर जाता है? जंप कर जाता है। जितनी एनर्जी देंगे, थोड़ी सी एनर्जी थी तो इस पर जंप कर गया, ज्यादा एनर्जी थी तो थर्ड पे जंप कर गया, बहुत ज्यादा एनर्जी थी तो यहाँ पर जंप कर गया। ये बात समझ में आई? तो अब हम इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन या फिर एक्साइटेड स्टेट। जब कोई हमें बहुत एनर्जी होती है तो हम क्या होते हैं? एक्साइटेड में हमारी एनर्जी बड़ी हो जाती है ना, जब एक्साइटमेंट होती है। तो वहीं से हमने ये वर्ड चुरा लिया है कि जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ गई तो वो क्या होगा? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन या एक्साइटेड स्टेट में। अब बच्चा मानो कि वो एक्साइटेड स्टेट में चला तो गया, पर क्या वो हमेशा इस एक्साइटेड स्टेट में रह सकता है? नहीं, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी भी होती है। तो अब क्या होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो भी इसने एक्स्ट्रा एनर्जी ली है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी ये वापस करता है, और वापस अपनी ग्राउंड स्टेट, जो इसकी ओरिजिनल स्टेट होती है उसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं उसे? ग्राउंड स्टेट। और जिसमें वो जाता है दैट इज द एक्साइटेड स्टेट। बेटा एक इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एक्सेप्ट करी, इट हैज जंप टू द एक्साइटेड स्टेट। लेकिन एक्साइटेड स्टेट से क्या करता है? जब वो वापस आता है तो जितनी भी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी होती है वो एनर्जी ये एमिट कर देता है। क्या कर देता है? एनर्जी एमिट कर देता है, बाहर निकाल देता है, और वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है।
अब जब ये एनर्जी एमिट करता है ना बच्चे, तो वो अलग अलग वेवलेंथ से एमिट कर सकता है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे अलग अलग रेज होती हैं, कभी इंफ्रारेड होती है, कोई अल्ट्रावायलेट रेज है, कोई माइक्रोवेव्स है, कोई एक्स रेज है, कोई गामा रेज है। तो यहाँ पर भी यही होता है बच्चा कि ये एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन गया और जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो वो अपनी रेडिएशंस निकालता है और उस रेडिएशंस के स्पेक्ट्रा को जब हम पढ़ते हैं तो दैट इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रा। अब एमिशन स्पेक्ट्रा बेटा कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और लाइन भी हो सकता है। देखो एमिशन स्पेक्ट्रा कैन बी कॉन्टिन्यूअस और लाइन। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या है, मतलब बच्चे मानो कि मेरे पास 10 रेज टू द पावर 12 से लेकर 10 रेज टू द पावर 14 तक की सारी वेव्स दिख रही हैं। ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूएशन, एक के अंदर एक मर्ज हो गई कि रेड भी है, रेड के साथ ब्लू भी है, ब्लू के साथ ग्रीन भी है, मतलब विजिबल नहीं, मान लो अल्ट्रा वायलेट है या वायलेट है, सारी रेज हमें मिल रही है। ठीक है, कहीं पे कोई भी गैप नहीं है, हर एक किसी की हमें सारी रेज कॉन्टिन्यूएशन के अंदर मिल रही है। तो दिस इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। और बेटा लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, जब हमें सारी रेज नहीं मिलती है, हमें स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली एक रे यहाँ मिली इस वेवलेंथ पर, फिर एक लाइन यहाँ मिल गई इस वेवलेंथ पर, ऐसे पास पास, फिर कुछ यहाँ मिल गई। सो दिस इज अ लाइन स्पेक्ट्रा। डिफरेंस समझ में आ रहा है लाइन स्पेक्ट्रा और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा में? यस मैम। जैसे रेनबो इज अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा है ना, उसमें कलर्स आपस में मर्ज हो जाते हैं। लाइन स्पेक्ट्रा इज जिसमें हमें स्पेसिफिक लाइंस मिलती हैं। अब बच्चा हाइड्रोजन जो होता है ना वो हमारा सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका स्पेक्ट्रा सबसे आसान होता है, इसीलिए हम सिर्फ इसके स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। बाकी सभी एटम्स का स्पेक्ट्रा पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, वो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग रिसर्च में पढ़ते हैं। हम लोग अभी 11th में क्या पढ़ेंगे, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? यस मैम, गॉट इट। देखो अब मैं एक बार आप लोगों को आपकी बुक दिखाती हूँ और आप एक चीज देखना। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा, देखो when a substance is irradiated with light it absorbs energy। ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन जो कोई भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं रेडिएशंस आर कॉल्ड एक्साइटेड। हीटिंग से भी एक्साइटमेंट स्टेट आ सकती है, और जब एक्साइटेड स्पीशीज अपनी एनर्जी देती है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, उसको वो रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इट इज कॉल्ड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और वो जो स्पेक्ट्रम होता है उसको जब हम नोट कर लेते हैं, इट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। अब बच्चा ये देखो, जब हम लोगों ने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया तो हमें इस तरीके का स्पेक्ट्रम मिला। मैं आपको बिल्कुल जूम करके दिखा दूं। देखो क्या आप लोगों को दिख रहा है बच्चे, हमें किस तरीके से यस मैम, इज विजिबल। देखो स्पेसिफिक लाइंस मिल रही हैं एंड लाइंस आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टुगेदर। तो देखो बिल्कुल यहाँ पे पहले एक, फिर ऐसे दो, फिर ऐसे पास 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 पास, कुछ विजिबल रीजन में भी है, बाकी सारी अनविजिबल रीजन में भी है। तो हमें इस तरीके की लाइन सीरीज में, इसी सीरीज को बेटा हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। बेटा ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है ये अलग अलग साइंटिस्ट ने पढ़ा था, और उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर हम लोगों ने ये अलग अलग सीरीज का नाम गिवन है। ये देख मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये इस तरीके से 5 सीरीज है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी तो टाइम हो गया। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
बट बच्चा यू नीड टू प्रॉमिस कि आप नेक्स्ट क्लास में जहां तक हमने आज पढ़ा है वहां तक आप पढ़कर आओगे, ठीक है बेटा? अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मैं कितना भी पढ़ा लूं उससे आपको नहीं समझ में आएगा। क्लियर है? अच्छा, और एक अभी ये क्वेश्चंस मार्क करो। अब आप लोग होमवर्क में ये वाले क्वेश्चंस ट्राई करोगे, ठीक है? देखो, एक तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स करे हैं, ठीक है? यस मैम। बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, बी पार्ट, Yes, ma'am. ये वाले क्वेश्चंस बेटा आप सबको होमवर्क में करने हैं, मार्क कर लो आप। Um, कर लिए सबने मार्क? यस मैम। ओके yes, बच्चे, ma'am. ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब ये होमवर्क आप लोग करके लेकर आना, ओके? चलो, Okay, ma'am. Okay, ma'am. Good night, ma'am. Take care. गुड नाइट बेटा, Good morning. Okay, bye.